myself Sunita Sinha. Today we are going to start chapter number 10, Light, Reflection and Refraction. First question arises in our mind, what is light? Light क्या होता है? It is a very simple and non-question. But what is the proper definition of light? Light is a electromagnetic radiation which travels in a straight path. लाइट आपका वन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है जो ऑलवेज स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करता है. लाइट हैव सो मेनी प्रॉपर्टीज. टू ऑफ देम आर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. लाइट के बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं. फॉर एन एग्जांपल, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, स्कैटरिंग एंड सो ऑन. इस चैप्टर में आपको लाइट की दो प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. फर्स्ट पॉइंट इज एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट लाइट दैट फॉल्स ऑन इट. एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिस पे लाइट फॉल्स होता है वो ऑलवेज लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करेगा. ओके, रिफ्लेक्टेड लाइट व्हेन रिसीव्ड बाय आवर आईज इनेबल अस टू सी द थिंग्स. जब यही लाइट आपके आईज पे रिसीव्ड होता है तब आप कोई ऑब्जेक्ट को इजीली देख सकते हो. वी आर एबल टू सी थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम एज ए लाइट इज ट्रांसमिटेड थ्रू इट. There are a number of common wonderful phenomena associated with light. हमारे पास बहुत सारे wonderful phenomena हैं जो लाइट से जुड़े हुए हैं. For an example, image formation by plane mirror, twinkling of star, beautiful color of a rainbow, bending of light by a spectrum. These are the example of properties of light. When we have the idea of properties of light, we easily got the answer of such type of question. So first point is reflection of light. What is the definition of reflection of light? When a ray of light approaches a smooth surface and bounces back, it is called reflection of light. अगर कोई लाइट आपकी स्मूथ सरफेस पे फॉलन डाउन हो और वो बाउंसेस बैक होकर सेम मीडियम में वापस आ जाए तो उसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं. For an example, suppose this one your smooth surface. When any light fallen down on the object, which is known as incident ray, okay, then it bounces back. But condition is कि your surface should be smooth and shiny. जब smooth and shiny होगा तो ये incident light same medium में reflected back हो जाएगी. This phenomena is known as reflection of light. The laws of reflection of light. Okay, we have two laws of reflection of light. First, the angle of incidence is equal to the angle of reflection. Angle of incidence or angle of reflection always equal होता है. Example, suppose this one your smooth surface, one light is incident on this one surface and this light reflected back. Okay, this one known as I, incident light, this one known as R, reflected ray. One normal ray should be drawn which are perpendicular to the surface. Then angle between these two known as angle of incidence. Angle between these two known as angle of reflection. Symbol is R. So according to first law के हिसाब से angle I always equal to angle R. This one the first law of reflection of light. Second point, the incident ray, the normal to the mirror at the point of incidence and the reflected ray. Okay, all three rays I, R and normal means N. Okay, ये सभी थ्री रेज आपके सेम प्लेन पे होने चाहिए. These two laws of reflection are followed by all type of reflecting surface including spherical surfaces. Now next point is types of mirror. कितने टाइप्स ऑफ आपके मिरर हैं? 2. फर्स्ट कॉन्केव मिरर एंड सेकेंड योर कॉन्वेक्स मिरर. कॉन्केव मिरर डेफिनेशन, अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड्स इज नोन एज कॉन्केव मिरर. ये आपके स्फेरिकल मिरर का एक पार्ट है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड होना चाहिए, यानी स्फेरिकल मिरर का ये पार्ट जिसका इनर साइड रिफ्लेक्टेड होना चाहिए और ये आपका पॉलिश सरफेस होगा. ओके, तब इस टाइप के मिरर को हम बोलते हैं कॉन्केव मिरर. व्हाट इज कॉन्वेक्स मिरर? अ स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is curved outward.
जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड होता है, यानी दिस साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सो दिस वन द पॉलिश्ड वन। तो इस टाइप के मिरर को कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे। मेन टर्म्स रिलेटेड टू मिरर्स, जब हम मिरर की स्टडी करते हैं तो बहुत सारे टर्म्स आपके यूज होंगे। फर्स्ट पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर। द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर पॉइंट ऑफ हॉलो स्फीयर, दैट इज मिरर, एंड इट्स सिंबल इज सी। इसका सिंबल क्या होता है? सी। ओके। सेकेंड पॉइंट है पोल। द पोल ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ मिरर, सो इट्स सिंबल इज P. Suppose this one your concave mirror, ये आपका concave mirror हुआ, and this one your polished side. Okay, यहाँ पे आपका बनेगा center of curvature, this one your C, and mirror के इस part का जो center होगा उसको हम बोलेंगे pole. क्लियर हुआ? ये spherical mirror के center को बोलते हैं center of curvature, एंड मिरर के सेंटर को बोलेंगे पोल। थर्ड पॉइंट, रेडियस ऑफ कर्वेचर। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड सी, अगर इस लाइन को ज्वाइन करें तो दिस लाइन सेगमेंट इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसका सिंबल होता है आर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, प्रिंसिपल एक्सिस। The line passing through the center of curvature and its pole is known as principal axis. Okay, this one your concave mirror, this one become pole of mirror, this one your center of curvature. Okay, one line passing through between P and C. P and C से जो line pass होगा उसको हम बोलेंगे principal axis. Next, focus. It is a point on principal axis at which the light rays which are parallel to the principal axis are met. This point is known as focus. Principal axis पे एक ऐसा point जिसपे सारे पैरेलल रिफ्लेक्टिंग रे टर्न आउट होते हैं, मीट होते हैं. सपोज दिस वन इंसिडेंट रे विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. आफ्टर रिफ्लेक्शन they passes through this one point. Okay, just take another one line, this one incident ray which is parallel to principal axis. After reflection it also pass through this one point. Then this point is known as focus of center, sorry, focus of mirror. Okay, now next point, focal length. The distance between pole and focus, the distance between this pole and focus is known as focal length and its symbol is small f. Be remember, capital F is the symbol of focus and small f is the symbol of focal length. Now our next topic is image formation by spherical mirrors. Okay, first rules. A ray parallel to the principal axis. Okay, अगर कोई ray, it means incident ray प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगी? देन इट पासेस टू द प्रिंसिपल एक्सिस, सॉरी, प्रिंसिपल फोकस. ओके, नाउ सपोज दिस वन योर कॉनकेव मिरर, दिस वन योर प्रिंसिपल एक्सिस, ये बना आपका पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस वन योर फोकस. ओके, फर्स्ट कंडीशन कि अगर कोई लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो तो श्योरली वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगी? फोकस ऑफ मिरर. क्लियर? सेम वे में कॉन्वेक्स मिरर में भी, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, ये आपका बना पोल, फोकस एंड सेंटर. अगर कोई लाइन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है तो वो कहाँ से पास होना चाहिए? फोकस से. ओके, तो ये आपका डाइवर्जेंट रे होती है, इसलिए इसका इमेजिनरी लाइन हम कहाँ से पास करके दिखाएंगे? फोकस से. सो इट इज द फर्स्ट रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन. बी रिमेंबर, कोई भी लाइन अगर आपके प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास फ्रॉम द फोकस. नेक्स्ट रूल, A ray passing through the principal focus. सपोज कर लो इंसिडेंट रे ऑलरेडी प्रिंसिपल फोकस से पास कर रही है,
तब आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास करेगी, देन इट विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. सपोज दिस वन योर पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस वन योर प्रिंसिपल एक्सिस. ओके, सपोज कर लो ये आपका इंसिडेंट है जो ऑलरेडी पहले से ही कहाँ से पास कर रही है, फोकस से. ओके, ये इंसिडेंट रे आपका. तो आफ्टर रिफ्लेक्शन श्योरली इट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. आपका रिफ्लेक्टेड रे किसका पैरेलल होगा, प्रिंसिपल एक्सिस का. सेम रूल फॉर कॉन्वेक्स मिरर आल्सो. नाउ आवर थर्ड रूल. सपोज अ रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर. सपोज कर लो कोई रे आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, इंसिडेंट है, तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास होगी, जस्ट सी इट रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ. यानी अगर वो सी से इंसिडेंट हो रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद भी वो उसी पाथ पे रिटर्न बैक हो जाएगी. ओके, एंड दिस वन फॉर आल्सो. नेक्स्ट रूल, अ रे पासिंग थ्रू द पोल. सपोज कर लो कोई इंसिडेंट रे पोल से पास कर रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन it back by making equal angle with the principal axis. Okay, just see in figure. Suppose कर लो कोई इंसिडेंट रे आपके पोल से पास कर रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से जाएगी, पोल से ही होके रिटर्न बैक होगी. बट कंडीशन दिस एंगल एंड दिस एंगल शुड बी इक्वल. इट मीन्स अगर 30 का एंगल बनाकर इंसिडेंट रे है तो रिफ्लेक्शन के समय भी उसको कितने का एंगल बनाने का, 30 का. ओके, नाउ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर. अभी हम लोग ने सारे रूल्स पढ़ लिए. ओके, वन टाइम रिमाइंड करते हैं. अगर कोई लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो वो कहाँ से पास करेगी, शुड बी पासेस थ्रू द फोकस. ओके, क्लियर. नाउ नेक्स्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इंफिनिटी. सपोज यू हैव ए कॉनकेव मिरर एंड ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इंफिनिटी. इंफिनिटी पे रखा हुआ है, तब आप फाइंड आउट करो इमेज पोजीशन, नेचर एंड साइज. इमेज की पोजीशन आपको पता लगाना है, नेचर पता लगाना है और साइज. और कंडीशन केवल क्या दिया है कि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, इंफिनिटी पे. ओके, दिस वन योर फिगर. सपोज आपके पास कॉनकेव मिरर है. ओके, हाउ यू स्टार्ट टू ड्रॉ दिस वन फिगर. आपको पहले एक कॉनकेव मिरर बनाना है. आप इसको प्रोटेक्टर या राउंडर की हेल्प से ड्रॉ कर सकते हो. बी केयरफुल, ये राउंड शेप में होना चाहिए. इसका जो सेंटर है उसको आपको क्या सपोज करना है, पोल. एंड जस्ट टू ड्रॉ वन रे, एक रे आप ऐसे पास करोगे. ओके, अब आपको फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर रखना है. जब हम प्रैक्टिकली करते हैं तो हम सेंटर ऑफ फोकस फाइंड आउट करते हैं, बट दिस वन आवर थियोरेटिकल पोर्शन. ओके, so we take the 2 centimeter, 2 or 3 just to fix. Suppose I am taking 2 centimeter. आप पोल से 2 सेंटीमीटर लो और उसका नाम क्या रखो, फोकस. एंड फोकस से 2 सेंटीमीटर लो, दैट्स ऑन योर सेंटर ऑफ कर्वेचर. बी केयरफुल, PF और FC का डिस्टेंस ऑलवेज इक्वल होना चाहिए. तो आप 2 सेंटीमीटर लो या 3 सेंटीमीटर. ओके, नाउ अब कंडीशन फुलफिल करते हैं. ऑब्जेक्ट इज कैप्ड एट इंफिनिटी. अब इंफिनिटी पे तो ऑब्जेक्ट को नहीं रख सकते, इसलिए उसके रे को हम क्या सपोज करते हैं, वो कैसे आ रहा है, पैरेलल. और अभी हमने फर्स्ट रूल पढ़ा, व्हेन एनी रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू द फोकस. वो कहाँ से पास होगा, फोकस से. ओके, अब इमेज कहाँ बना, तो इमेज बनने के लिए कम से कम आपके 2 रिफ्लेक्टेड रे होना चाहिए. एक ये हुआ तो एक हम नीचे लेते हैं, दैट्स वन आल्सो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. फिर ये भी रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास होगा, फोकस से. ओके, अब ये फोकस से पास हुआ. नाउ यू फाइंड आउट कि आपका इमेज कहाँ बना. तो देखो इमेज कहाँ बना हमारा, एट फोकस. आप क्या लिखोगे, इमेज कहाँ बना, एट फोकस. साइज बताओ, साइज कैसा हुआ, तो हाईली डिमिनिश्ड, क्योंकि ये पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर बना. कैसा बना, तो सेम साइड, जिधर आपका ऑब्जेक्ट है उधर ही आपका इमेज बना. इसलिए हम बोलेंगे हमारा इमेज कैसा बना, रियल एंड इन्वर्टेड. क्लियर हुआ. फिर से सुनिए,
जिस साइड आपका ऑब्जेक्ट है उसी साइड अगर आपका इमेज होता है तब हम बोलते हैं नेचर कैसा बना, रियल एंड इन्वर्टेड। नाउ सेकेंड सिचुएशन, सपोज ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट को कहाँ आपने प्लेस किया, बियॉन्ड सी यानी सी के बाहर। तो आपको फिर से क्या करना है, एक मिरर ड्रॉ करना है, उसके सेंटर को पोल 2 सेंटीमीटर पे एफ लेना है, उसके 2 सेंटीमीटर पे सी। अब ऑब्जेक्ट को रखो, ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, बियॉन्ड सी। सो बियॉन्ड सी यू कैप द ऑब्जेक्ट, दिस वन योर ऑब्जेक्ट। 2 रे होने चाहिए। फर्स्ट रे ऑलवेज आपका क्या होगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो रूल के हिसाब से अगर कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ से पास होना चाहिए, फोकस से। ठीक है, फोकस से पास किया। सेकेंड लाइन आप कहीं से भी ले सकते हो, चाहे वो एफ से पास कराओ या पी से। आपके बुक में क्या फॉलो किया, सी। सपोज कर लो सेकेंड लाइन हमने कहाँ से पास किया, सी से। तो रूल के हिसाब से अगर कोई लाइट, इंसिडेंट लाइट सी से पास हो रहा है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रिटर्न बैक ऑन द सेम पाथ, इसी पाथ से वापस जाएगा। अब हमारे पास 2 इंसिडेंट रे और 2 रिफ्लेक्टेड रे। दोनों रिफ्लेक्टेड रे जिस पॉइंट पे ज्वाइन होते हैं वहां आपका इमेज बनता है। तो हमारे ऑब्जेक्ट का नाम क्या हुआ, ए बी, और इमेज का नाम क्या बना, ए डैश बी डैश, जैसी है। ओके, अब पोजीशन फाइंड आउट करो। इमेज की पोजीशन कहाँ हुई, बिटवीन एफ एंड सी। ओके, नेचर बताओ। तो ये ऑब्जेक्ट की साइज से छोटी है। जब भी ऑब्जेक्ट की साइज से आपका इमेज छोटा होगा तो हम क्या लिखते हैं, डिमिनिश्ड। ओके, या वेरी स्मॉल साइज आप लिख सकते हो। क्या लिखेंगे, डिमिनिश्ड। नेचर कैसा बना, तो आपके इस साइड ही बना, जिधर आपका ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज बना। सो योर नेचर ऑफ इमेज इज रियल and inverted. Okay, this one your second situation. Now we discuss on third situation. Suppose you placed at C. आपने इस बार ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, C पे। फिर से सेम सिचुएशन, पोल 2 सेंटीमीटर फोकस, 2 सेंटीमीटर C। इस बार आपको ऑब्जेक्ट एग्जैक्ट C पे रखना है। फर्स्ट लाइन शुड बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही होना चाहिए। तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास करेगा, आपका एफ पे। दूसरी लाइन आपको इस बार सी से पास नहीं कर सकते हैं, व्हाई, बिकॉज ऑब्जेक्ट इज ऑलरेडी प्लेस्ड एट सी। सो सेकेंड इंसिडेंट रे हमको कहाँ से पास कराना पड़ेगा, फोकस से। हमने सेकेंड रूल पढ़ा कि अगर कोई लाइट आपके फोकस से पास हो रही है, अगर आपका इंसिडेंट रे फोकस से पास हो रहा है तो वो क्या होगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। यहाँ पे भी ये रूल फॉलो करो। फिर से देखो, ये आपका पोल हुआ, ये सपोज कर लो दिस वन पोल, फोकस एंड सेंटर। आपने सेंटर पे ऑब्जेक्ट रखा तो ये यहाँ से पैरेलल और कहाँ से पास होना चाहिए, फोकस से। ओके, सेकेंड लाइट आपको कहाँ से पास करना है, फोकस से। तो फोकस से जब आप पास करोगे तो वो किसके पैरेलल होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के। ओके, अब देखो ये दोनों पॉइंट कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे। तो यहाँ से आपको इमेज खड़ा करना है। ये रहा आपका इमेज, ए डैश बी डैश। अब पोजीशन बताओ, इमेज कहाँ बना, तो एट सी। कैसा बना साइज, तो सेम साइज, जितना आपका ए बी है उतना ही आपका क्या बना, ए डैश बी डैश। नेचर कैसा बना, अगेन रियल एंड इन्वर्टेड। Now next situation, when you placed between F and C. जब आप ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करते हो, F and C। ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। ओके, अब यहाँ से फर्स्ट लाइन आपको पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो रूल के हिसाब से उसको कहाँ से पास करना पड़ेगा, F से। सेकेंड लाइन आपको या तो F से पास कराना है या तो C से। तो आपका C से पास किया, देखो ये रहा C। तो हमने रूल में पढ़ा अगर कोई लाइट सी से आती है तो रिटर्न बैक भी कहाँ से होगी, सी से। ओके, अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ इमेज नहीं बन सकता है क्योंकि यहाँ से आपकी लाइट क्या हो रही है, एक दूसरे से डाइवर्ज हो रही है। तो हम इस साइड आपके लाइट को ज्वाइन करेंगे। ओके, यहाँ देखो आपकी ये दोनों इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड लाइट मीट हुई।
यहाँ पे बना आपका इमेज ए डैश बी डैश। ओके, फर्स्ट डिस्कस पोजीशन ऑफ इमेज। इमेज की पोजीशन कहाँ बनी? बियॉन्ड सी। साइज कैसा हुआ? तो इस बार देखो ऑब्जेक्ट की साइज छोटी है, ओके, और आपकी इमेज की साइज बड़ी है, इसलिए हम लिखेंगे एनलार्ज। और नेचर कैसा बना? अगेन रियल एंड इन्वर्टेड। नाउ नेक्स्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ। जब आप एफ पे रखते हो ऑब्जेक्ट को, तब जब आप एफ पे रखोगे तो फर्स्ट लाइन सेम कंडीशन पैरेलल, और वो पास कहाँ होगा? एफ से। एंड दूसरे पॉइंट को कहाँ रखोगे? सी पर। तो और ये रिटर्न बैक भी कहाँ होगी? सी। अब देखो ये लाइन आपका क्या है? पैरेलल है, तो ना तो ये इस साइड मीट होगी और ना ही ये साइड मीट होगी, यानी आपका इमेज फॉर्मेशन नहीं बनेगा। तो ऐसे सिचुएशन में इमेज पोजीशन हम क्या लिखेंगे? इन्फिनिटी। इमेज पोजीशन आपका क्या बनेगा? इन्फिनिटी, क्योंकि ये लाइन कहीं भी मीट होते हुए नहीं दिख रही है। और साइज कैसा होगा? हाईली एनलार्ज। नेचर कैसा हुआ? रियल एंड इन्वर्टेड। नाउ नेक्स्ट सिचुएशन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी। अगर आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा? एफ एंड पी के बीच में, ओके, दिस वन योर ऑब्जेक्ट। तो आपका अब इमेज कैसे फॉर्म होगा? ये सबसे अलग आपका है। सपोज कर लो कि फर्स्ट लाइट आपने कहाँ से लिया? सी से, तो रिटर्न बैक भी कहाँ होगा? सी से, ओके। एंड दूसरा पाथ हमने इस बार कहाँ से लिया? पी। तो पी का रूल हमने क्या पढ़ा था? अगर कोई लाइट पी पे इंसिडेंट होगा तो रिटर्न बैक भी पी पे, बट कंडीशन दिस वन एंगल और दिस वन एंगल आपका क्या होना चाहिए? इक्वल, ओके। तो ये देखो, अब ये आपका एक रिफ्लेक्टेड रे है और एक ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है। देखो ये दोनों लाइट इस साइड तो कभी भी मीट नहीं होगी। वाई? क्योंकि ये दोनों लाइट एक दूसरे से डाइवर्ज यानी दूर जा रही है। तो अब हम बैक साइड उसको मिलाने की कोशिश करेंगे। ये देख, दिस वन साइड, उल्टे साइड, यहाँ पे आपका पॉइंट आकर मीट हो रहा है, तो यहाँ बना आपका इमेज ए डैश बी डैश। अब पोजीशन बताओ, इमेज की पोजीशन कहाँ बनी? बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। साइज क्या बना? एनलार्ज, क्योंकि देखो ये आपका ऑब्जेक्ट का साइज, ये आपका इमेज का साइज, एनलार्ज। नेचर कैसा होगा आपका? तो इस बार नेचर आपका कैसा होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेचर कैसा होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब सीधा। ये देखो इस बार आपका इमेज सीधा बना है और मिरर के उस साइड बना है, इसलिए क्या बना? रियल की जगह पे वर्चुअल। याद रखना दो टाइप का होता है, एक को हम बोलते हैं रियल और उसी का अपोजिट में होता है वर्चुअल। या तो रियल बनेगा या तो वर्चुअल। तो जब मिरर के सेम साइड में बनता था तो हम क्या बोलते थे? रियल। ये मिरर के जस्ट अपोजिट साइड में, मिरर के बिहाइंड बना है, इसलिए इस बार आपका क्या बनेगा? वर्चुअल। अगर इमेज उल्टा बना है तो उसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड। ठीक है, क्या नाम लेंगे? इन्वर्टेड। और अगर ये सीधा बना तो क्या लेंगे? इरेक्ट। तो इस बार आपका इमेज बना वर्चुअल एंड इरेक्ट। This one your whole table. 6 images will be formed by the concave mirror. हमने 6 इमेज बनाए और ये 6 इमेज की पोजीशन है। एंड दिस वन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस वन द पोजीशन ऑफ इमेज। और ये आपका फिक्स होता है, इसको आप चेंज नहीं करोगे। क्लियर? सम टाइम ये आपके एमसीक्यू में डायरेक्टली पूछता है। सपोज दिस वन एग्जाम में आएगा, when object is placed between C and F, then what is the position of image? Then you write down directly beyond C. So you learn this one table. Now next topic, image formation by convex mirror. आप convex mirror से image formation सीखेंगे। We remember convex mirror से हम हार्डली 2 इमेज ही बना सकते हैं। याद रखना, कॉनकेव मिरर से हम 6 इमेज फॉर्म करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर से हमारा केवल 2 इमेज फॉर्म होता है। फर्स्ट सिचुएशन, जब आप ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करोगे? इन्फिनिटी पे। ओके, जब भी आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो लाइन कैसे लेना हमको? पैरेलल। क्लियर? तो हमने क्या पढ़ा? अगर कोई लाइन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है
तो वो कहाँ से पास होगी, फोकस से। बट इस मिरर का फोकस अपोजिट साइड होता है, तो आपको इसको पैरेलल कहाँ लेकर जाना है, ऐसे। क्लियर। बट इमेज तो इधर मिलना चाहिए, तो ये आपका लाइट रिफ्लेक्ट बैक हुआ। अब बताओ आपका इमेज का पोजीशन कहाँ हुआ, एट द फोकस। साइज कैसा हुआ, हाईली डिमिनिश। और ये अपोजिट साइड में, ऑब्जेक्ट इधर है और इमेज इस साइड बना, इसलिए कैसा नेचर बनेगा, तो वर्चुअल और क्या बोलेंगे, सीधा बनेगा, तो नाम होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर। याद रखना पेयर में काम होता है, जब भी आपका इमेज रियल होगा तो साथ में आपका ऑलमोस्ट क्या बनेगा, इन्वर्टेड। जब भी इमेज रियल तो इमेज का लुक उल्टा होगा, इन्वर्टेड। ओके। नाउ सेकेंड सिचुएशन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। अगर आप पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखो तो इमेज हमेशा इधर ही बनेगा। फर्स्ट लाइन आपको क्या लेना है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कहाँ से पास होगा, आपके फोकस से। देखो ये फोकस पे हुआ, ओके। और यहाँ से हम रिटर्न बैक देंगे। सेकेंड लाइन हमने कहाँ से लिया, सी से। देखो, और सी का रूल हमने क्या पढ़ा था कि आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बैक टू द सेम पाथ, ये वापस आया। ये दोनों लाइन आपका कहाँ मैच हुआ, यहाँ पे। ओके, तो ये बना आपका इमेज। अब सिचुएशन बोलो, पोजीशन कहाँ इमेज बना, बिटवीन पी एंड एफ। साइज कैसा हुआ, तो ये ऑब्जेक्ट की साइज और ये इमेज छोटी है, तो यहाँ पे छोटी साइज को क्या नाम दिया था, डिमिनिश्ड। ओके। और नेचर कैसा होगा, तो फिर से ये आपके ऑब्जेक्ट के उल्टे साइड में बना है, तो हम वापस बोलेंगे इमेज कैसा बना, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर। दिस वन योर टेबल, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। दो ही सिचुएशन आपके कॉन्वेक्स मिरर के लिए है। नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट, यूजेज ऑफ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्केव मिरर का यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, इट इज यूज्ड इन टॉर्च, सर्च लाइट, व्हीकल्स, हेडलाइट, सेविंग मिरर, डेंटिस्ट, मोस्टली डेंटिस्ट यूज दिस वन कॉन्केव मिरर, एंड सोलर फर्नेस। इन सभी में कॉन्केव मिरर यूज होता है। वेयर वी यूज कॉन्वेक्स मिरर, इट इज यूज इन रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स, जिससे आपको पीछे की व्हीकल्स का क्लियर इमेज, यानी चाहे जितना बड़ा भी व्हीकल हो आपके मिरर में उसका कंप्लीट बॉडी स्ट्रक्चर दिखेगा। और दूसरे है आपका वॉल मिरर, जब आपको किसी टॉल बिल्डिंग का फुल लेंथ देखना हो एक स्मॉल मिरर में, तब हम कौन सा मिरर यूज करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। साइन कॉन्वेक्शन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। जब हम मिरर इमेज फॉर्मेशन पढ़ते हैं तो कुछ रूल एंड रेगुलेशन होता है जो ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। अब साइन कन्वेंशन भी होता है, यानी किस साइड आपको प्लस साइन लेना है और किस साइड माइनस। सो फर्स्ट रूल, द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। जब भी आपको ऑब्जेक्ट रखना है तो मिरर के लेफ्ट साइड यानी इस साइड आपको ऑब्जेक्ट रखना है। ओके। This implies that light from the object falls on the mirror from left hand side. Incident ray हमेशा left hand side से होकर जाना चाहिए। Second, all distance parallel to the principal axis are measured from the pole of the mirror. जब भी आपको डिस्टेंस मेजर करना है तो हम लेंथ की स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, पोल से। Third, all the distance measured to the right of the origin along with positive x-axis are taken as positive and those measured to the left of the origin taken as negative. ठीक है, ये आपके पोल का पॉजिटिव डाय। इस साइड आप जितने भी ऑब्जेक्ट रखोगे सबको किस साइन में लेना है, नेगेटिव साइन में। ओके। और लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव और राइट हैंड साइड अगर इधर कुछ काम कर रहे हो तो सभी की साइन क्या होगी, पॉजिटिव। नाउ फोर्थ वन रूल, distance measure perpendicular to and above the principal axis are taken as positive. अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ले रहे हो इधर y एक्सिस तो वो सारे डिस्टेंस किस में होंगे, पॉजिटिव में। डिस्टेंस मेजर परपेंडिकुलर एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो जाओगे तो सभी साइन आपको किस में लेना है, नेगेटिव में।
दिस वन द डायग्राम ऑफ साइन कॉन्वेक्शन, ठीक है। ये आपका मिरर हुआ। सभी डिस्टेंस कहाँ से मेजर करने हैं? पोल से। पोल के राइट साइड में जाओगे तो क्या लेंगे? पॉजिटिव। पोल के लेफ्ट साइड जाएंगे तो नेगेटिव। इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन हमेशा लेफ्ट साइड में होना चाहिए। ऑब्जेक्ट को हमेशा कहाँ रखेंगे हम? लेफ्ट साइड। अगर ये परपेंडिकुलर इन अपर डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव साइन, अगर ये परपेंडिकुलर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो negative sign. This one the sign convention followed by spherical mirror. So now our next point, mirror formula. What is mirror formula? The relationship between object distance, image distance and focal length is known as mirror formula. Mirror formula में हम तीन के बीच का रिलेशन दिखाते हैं, object, image and focal length. What is the symbol of these three terms? तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का सिंबल क्या होता है? U. इमेज डिस्टेंस का सिंबल V एंड फोकल लेंथ का सिंबल F. इन तीनों को एक रिलेशन में डालते हैं तब आपका बनता है मिरर फॉर्मूला. इट मीन्स 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/F. दिस रिलेशन इज नोन एज मिरर फॉर्मूला और ये आपको इस चैप्टर के न्यूमेरिकल में यूज करना है. ना नेक्स्ट पॉइंट, मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर्स. व्हाट इज मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए लेंस सिमिलर टू दैट फॉर स्फेरिकल मिरर डिफाइंड एज. इसका डेफिनेशन क्या है? दिस वन जस्ट हियर. द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. रेशियो, इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट के रेशियो को ही हम क्या बोलते हैं? मैग्निफिकेशन, जिसका सिंबल क्या होता है? m. तो m का फॉर्मूला बना h-h, क्योंकि इमेज हाइट हम किस में लेते हैं? h' में, और ऑब्जेक्ट हाइट का सिंबल क्या होता है? h. सो इन शॉर्ट फॉर्म यू लर्न m इज इक्वल टू h'/h. इसका सेकेंड डेफिनेशन भी है. Magnification produced by a lens is also related to object distance and image distance. हम m का वैल्यू ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस से भी निकाल सकते हैं. पहले होगा इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. इमेज डिस्टेंस को हम सिंबल क्या लेते हैं? v, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का सिंबल होता है u. तो you have two formula of m, h'/h and second formula v/u. With the help of m, we also find very useful things. Okay. We easily find the nature and size of image. Sometimes we also find the position of image with the help of m. For an example, suppose your m value is greater than 1. It means size of image is bigger than object. Then you say image कैसा फॉर्म हुआ? enlarge. सेकेंड, m इज लेस देन 1. अगर m मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 से कम आया, इसका मतलब इमेज आपका स्मॉलर होगा. ओके, इट मीन्स डिमिनिश्ड. थर्ड पॉइंट, अगर m का वैल्यू प्लस में आया तो नेचर ऑफ इमेज क्या होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट. नेक्स्ट, अगर m माइनस में लेते हो तो नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड. ओके, रियल एंड इन्वर्टेड. दिस वन द पेयर वर्ड. अब एग्जाम में सपोज कर लो m इज इक्वल टू 1.25. ओके, m का वैल्यू दिया है 1.25 एंड एनीवन आस्क व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज. नेचर ऑफ इमेज कैसा बना होगा? विदाउट नोइंग एनीथिंग. तो कैसे फाइंड आउट करोगे? तो एक तो पहले नेचर का मतलब m का साइन देखना. यहाँ कुछ नहीं है तो कौन सी साइन होगी? प्लस. और प्लस का मतलब क्या हमने समझा? वर्चुअल एंड इरेक्ट. तो आप बोलोगे नेचर कैसा बना इमेज का? वर्चुअल एंड इरेक्ट. और साइज कैसा होगा? तो इट इज अ ग्रेटर देन 1. ओके, तो ये इमेज कैसा बनेगा आपका? एनलार्ज. इमेज की साइज कैसी होगी? एनलार्ज. ओके, एनीवन से m इज इक्वल टू -0.25. तब क्या होगा? तो पहले माइनस साइन. माइनस साइन का मतलब आपका नेचर कैसा बना? रियल एंड इन्वर्टेड. रियल एंड इन्वर्टेड माइनस. एंड दिस वन द लेस देन
1। लेस देन 1 का मतलब ये आपका डिमिनिश साइज में होगा। सो विद द हेल्प ऑफ मैग्निफिकेशन विदाउट एनी कैलकुलेशन इजली फाइंड द size and nature of image. Okay, now we solve one numerical related to our mirror. Suppose you have a convex mirror used for rear view on automobile has a radius. Radius कितना given out है 3 meter. If bus is located 5 meter from this mirror, this one your object distance. Now you find the position, nature and size. अब न्यूमेरिकल के थ्रू इन तीनों का आंसर देना है। तो फर्स्टली फाइंड आउट करते हैं। आर आपका कितना दिया है 3। बी केयरफुल, कॉन्वेक्स मिरर में रेडियस आपका किस में होगा प्लस में। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा किस में लेते हैं माइनस में। तो आपका आंसर हो गया u इज इक्वल टू -5 मीटर। आपको v और h निकालना है। ओके, अब मिरर का क्वेश्चन है तो हम क्या यूज करेंगे मिरर फॉर्मूला। और मिरर फॉर्मूला में हमने क्या पढ़ा 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो हमारे पास u है, v फाइंड आउट करना है तो रिमेनिंग कौन बचा f। तो आप पहले f फाइंड आउट करो। f कैसे फाइंड आउट करेंगे तो f आपका रेडियस का हाफ होता है। ओके, और क्वेश्चन में आपका रेडियस दिया है 3, सो 3/2 आंसर कितना हो गया 1.50। ओके, नाउ यू पुट आउट दिस वन वैल्यू 1/v आपको फाइंड आउट करना है तो 1/v रखा प्लस 1/u। ओके, अब 1/u u आपका कितना गिवन है -5 एंड f आपका कितना हो गया 1.50। ओके, अब सॉल्व करो, ये माइनस को उस साइड लेके जाओ। सो 1/v इज इक्वल टू 1.50 और माइनस उस साइड गया तो बना 1/5। ओके, अब एलसीएम लो 1.5 और 5 तो सपोज कर लो 15 और 5 है तो कितना आंसर आना चाहिए 75। तो हम एलसीएम लेते हैं 7.5, एक डिजिट लगा लीजिए 0। और 15 का टेबल पढ़ो 75 कितने टाइम में आएगा 5 टाइम में। ओके, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 5। अब 5 का टेबल पढ़ो 75 कितने में आएगा 15 टाइम, मगर डेसिमल है तो हम यहाँ लिखेंगे 1.50। नाउ प्लस करो कितना हो गया आपका 7.50 अपॉन 6.50 एंड दिस वन। ओके, ये 0 0 गया आपका, डेसिमल भी चला गया, रिमेनिंग क्या बचा 65/75। ओके, अब इसको कट आउट करो और ये किसका आंसर होगा आपका 1/v। मगर हमको तो किसका आंसर चाहिए v, तो इसको फिर आप रेसिप्रोकल कर दो ऑपोजिट, तो आंसर बनेगा 75/65। ओके, कट आउट कीजिए 5 से तो आपका आ जाएगा 50 और ये बनेगा आपका 30। इसको डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 1.15। क्लियर, ये बना आपका इमेज डिस्टेंस। v क्या निकालता है इमेज डिस्टेंस, एक आंसर हो गया। अब आपको क्या निकालना है नेचर। नेचर के लिए हमने पढ़ा हमारे पास क्या होना चाहिए m का फॉर्मूला क्या था आपका, m का 2 फॉर्मूला पढ़ा था h' और v/u। इस बार हमारे पास v और u है तो हम v और u का फॉर्मूला लेंगे। बट याद रखना कॉन्वेक्स मिरर में v और u लोगे तो फॉर्मूला कैसे लिखते हैं -v/u। अब वैल्यू पुट आउट करो। ओके, माइनस v हमारा कितना निकला देखो 1.5, ये हमारा v है तो क्या लिखोगे 1.5 अपॉन u हमने कितना लिया है -5, ये बना आपका -5, ये माइनस माइनस गया और कट आउट करोगे तो आपका आंसर आएगा, डिवाइड करेंगे इसको तो आएगा 0.23। ओके, अब इससे नेचर निकालो, दिस वन द लेस देन 1, ये आपका कैसा हुआ लेस देन 1। लेस देन 1 का मतलब साइज कैसा बना आपका स्मॉलर।
ओके और ये प्लस साइन के साथ है तो प्लस साइन के साथ मतलब नेचर कैसा बनेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट okay here your topic of reflection of light is over